This conference will now be recorded. Don't start recording immediately. Just stop this recording and start again. This conference will now be recorded. So good morning, students. Go to that screen. Good morning, students. So we are in the series of that workflow actions and workflow rules, right? In that workflow, we have completed two workflows. That is field update and email triggering. These two we have completed, and the third one, that is this one. What I mean to say, this task assignment, right? That we will look today, right? For the task assignment, we need to have some another user. So we have provided one user to you. I hope everyone would have created one more additional user from your Salesforce account. So now you are having two Salesforce account. One is your original account, and the another one is your account that you have created yesterday, right? So Sonali, open that another user also in the other browser. Okay. Yes. Okay. So here we have open, or we are having both the users with us. Now consider that this user, right, the second user, he can see everything now. The things which is available, or with the things which are available inside your original account, right? Everything is available. Patients, doctors, right? All the records also he can see. Everything he can see. Now, now the thing is that consider this is my compounder, or one another department of the hospital, we which used to take care of arranging the bed for द पेशेंट्स, राइट? अभी हॉस्पिटल में सारे ही पेशेंट्स जो आ रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों को एडमिट करना पड़ सकता है, कुछ लोगों को जस्ट कंसल्ट करके डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के उनको छोड़ देता है, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, कंसिडर दिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट हेड. ये जो नया यूजर हमने बनाया है, वो एक डिपार्टमेंट का हेड है, राइट? उसको बेड की अरेंजमेंट करनी है. बेड की अरेंजमेंट कब करनी है? जो हमारा पेशेंट है, राइट, उसके ऊपर हम एक एडिशनल फील्ड देंगे, राइट? उस फील्ड का नाम रहेगा नीड टू एडमिट, और वो पिक लिस्ट रहेगा, मतलब ड्रॉप डाउन रहेगा. और नीड टू एडमिट में दो ही ऑप्शन रहेंगे, दैट इज यस एंड नो. अगर यस रहेगा तो क्या होना चाहिए, दैट वन टास्क नीड टू बी असाइन टू दिस यूजर, दिस न्यूली क्रिएटेड यूजर. उसको यहाँ पे पता चलेगा कि आई हैव टू क्रिएट अ, और आई हैव टू अरेंज द बेड. कौन से पेशेंट के लिए? जिस पेशेंट के लिए डॉक्टर ने एडमिट टू नीड टू एडमिट यस किया है, उस पेशेंट के लिए उसको बेड अरेंज करना है, राइट? Once he arranged the bed, he will change the status of the task completed, right? Or if he is having any issue, then he can do those things. Now go back to your original account, so Sonali. Yes. Right. Now here, now here we need to just a minute. You what we need to do? We need to first of all create the task, right? Under workflow action, right? And once you create the task, then we need to assign that task to a particular user, right? Or once you assign that task to the particular user, then you need to write down some rules and assign that action to the rule. So first of all, search for task inside this home page search bar. Search for task. Yes. Right. Open that task now under workflow action. Press on continue.
now you will be launching into this stage or this step. There is no earlier task that we are having in our system. So just create a new task. Just click on new task. Once you click on new task, give some this select some object first. Now here one trick is there. Just drop down. Now for which object we are creating the task? Yes, patient object. Now select that patient object here. Click on that object. But here you cannot find the patient object, right? Yes. Here you cannot find patient object. Students, you can also check the patient object is not there. Why it is not there? Because because while creating that object, if you wanted to create the task on that object, there is one checkbox that we need to enable, right? जैसे reports है, events comes under task. A task comes under event. I will show you that where you need to enable that option. So just go to the object manager, Sonali. Yes. Select search for patient object. Yes. Open that patient object. Details page. Then edit this object. Yes. Press on edit button. Now students, here you can see the details that you have entered at the time of creating the object. वो same सारे वैसे ही है. Come down Sonali. ये सारे ही वैसे ही है. नीचे आओ. हाँ. Yes. Now here there are four check boxes are available. If you can see, allow reports. Yes, allow reports, allow events, right? So you need to click on all these four check boxes. तब भी that option will be means like हमारा जो है यहाँ पे we need to have the task, right? Or we need to create a task for the patient object. So for the patient object, we need to select on the option allow activities, right? So select on this allow activities only. Second one. Yes. Or in future we also wanted to create the report on this object also. So select allow reports and track field history. Everything you can enable. Okay. Now this allow report allows to create a report on that object. The next topic or like the after 1 or 2 days we will discuss about reports and dashboards. So at that time I will let you know what is report. So allow reports allows to create reports on that object. Allow activity allow to create event and the task on that object, राइट. देन अलाउ फील्ड हिस्ट्री. इसको अगर हमने सिलेक्ट किया तो हम फील्ड की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, राइट. कहाँ से डेटा कहाँ गया है, राइट. सो इन दिस वे if you can select all these four check boxes then also it is fine. ये आपको कोई हार्म नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने वाला है. So if you wanted to have that additional functionality in your organization then you can select it. Otherwise if you select it and if you don't wanted to use the additional functionality then also it's fine. So just click on save. Yes. Right. Now go back to the task again, search for the task. Continue. Now here you can see the patient object name. Now check the object, Yes. right? Now patient object is available.
right? Now that is fine, but again, ये कब फायर होना चाहिए, ये टास्क कब फायर होना चाहिए? तो पेशेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फील्ड है, राइट? दैट इज नॉट, वी हैव नॉट क्रिएटेड दैट फील्ड येट। उस फील्ड का नाम रखेंगे हम नीड टू एडमिट, और उसमें दो ऑप्शंस डालेंगे, यस और नो। सो वी हैव नॉट क्रिएटेड दैट। सो सोनाली, गो बैक टू द पेशेंट ऑब्जेक्ट अगेन and create one more field that is type pick list with yes no option. Simply go to the object manager, select that object, add one more field, data type has to be pick list, name, give the name as need to admit, field का नाम क्या रहेगा? need to admit. ऑप्शंस डाल दो उसके, yes और no. Save it. Select all check boxes here. Have you selected all Yes. those boxes? Yes. Visible. Ah, okay. So go next and save it. Yes. Just open this field once again. What you have edit, press on the edit button of that field. Need to admit, because I missed something. Let me verify once. Okay. Okay, no problem. That field is now created. Now go back to the task again. हमने हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है, एक एडिशनल फील्ड हमारे पेशेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाई है जिसका नाम है नीड टू फील्ड, और वो पिक लिस्ट टाइप का है वो फील्ड। उसमें दो ही ऑप्शन हमने डाले हैं, यस और नो, राइट? नाउ गो टू दैट टास्क अगेन, कंटिन्यू, create the, now select the object, Yes. okay? So you have selected, press on continue and next. Yes. Okay, now you can give some label. What is it? Label, right? So the task label should be arrange bed for the patient. Sorry, what is that? It is Assigned assigned to. to. Okay, assigned to. Click on that lens symbol. Okay, Yes. now in assigned to, there would have been two users, right? कौन से users है? एक Kumbade. कल बना, हाँ। सो एक आपका ओरिजिनल खुद का रहेगा, और जो आपने कल बनाया Yes. वो वाला रहेगा, राइट? सो जो आपका सेकेंड वाला है, जो यू हैव क्रिएटेड यस्टरडे, दैट इज कुम्बाडे इन आवर केस, इन Yes. योर केस Yes. दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। सो जस्ट सिलेक्ट ऑन दैट, Yes. Yes. तो उधर भेज दो। Now that user will arrive over here, right? What is that box then? Next one, Subject. subject, arrange the bed for the patient.
Yes. What is उसके नीचे क्या है? Unique name. Due That date. is due हाँ. date. You can select any date, like +0 ही कर देना, right? वही डेट पे उसको इंस्टॉल करना है बेड। वो जब ड्यू डेट में ये उसका लास्ट डेट देना है हमें, कब तक उसको प्रिपेयर करना है बेड, तो उसी दिन करना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएटेड डेट रहेगा। क्या क्या ऑप्शन है उसमें? सोनाली, विल यू प्लीज Patient रीड आउट? created date. हाँ, पेशेंट क्रिएटेड डेट, जिस दिन पे पेशेंट बने क्रिएट होगा +0 कर देना। मतलब उसी दिन उसको, मतलब आज अगर पेशेंट असाइन हो रहा है, आज अगर पेशेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसी दिन उसका बेड अरेंज करना है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो। और कंडीशन क्या है हमारी? नीड टू एडमिट जो फील्ड है उसमें यस हुआ तो, राइट? सो जस्ट डू दिस सोनाली, +0। Yes. हाँ, आफ्टर दैट उसके नीचे क्या है? A description. हाँ, description also you can write, please arrange the bed for the mentioned patient on urgent basis। और हेलो लिखना पहले, कॉमा करके। Yes. ओके, तो गो नेक्स्ट वन। और उसके बाद उसके नीचे क्या है? डिस्क्रिप्शन के नीचे कुछ है और नहीं, राइट? सो गो नेक्स्ट। Wait. Now here also you can see on the right hand side priority दिख रहा है, हाँ, status दिख रहा है। तो click on that status only, right hand side, Yes. show the options of status or priority। In status, not started. In process, completed. ओके, सो Wait on some फर्स्ट ऑफ minutes. ऑल, जब 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 ये हम असाइन करेंगे तो इट इज बट ऑब्वियस नॉट स्टार्टेड ही उसका स्टेटस रहेगा, राइट? Yes. प्रायोरिटी उसका हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, प्रायोरिटी पे क्लिक करना। इट कैन बी नॉर्मल, हाई, लो, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे आपको, राइट? सो आप हम नॉर्मली रखेंगे, राइट? उसकी प्रायोरिटी, टास्क कंप्लीशन की प्रायोरिटी, या फिर हाई कर देंगे, नॉट एन इशू। तो क्लिक ऑन हाई सोनाली। Yes. देन गो टू द नेक्स्ट। Save. Right? So this is what the task is created now, right? Now task is one type of action, right? So in order to this action to happen, हमें कुछ रूल लिखना पड़ेगा, वर्क फ्लो रूल। सभी केस में, हमारे तीनों ही केस में, जो हमने इसके पहले 2 वाले देखे थे, उसमें भी हमने क्या किया था? एक एक्शन था। फर्स्ट इसमें क्या एक्शन था? ईमेल था। सेकंड इसमें क्या एक्शन था? फील्ड अपडेट था। अभी हमारे थर्ड इसमें कौन सा है? टास्क असाइनमेंट। ये एक एक्शन हो गया, वो हमने बना लिया है। बट वो एक्शन कब करना है? जब उसके लिए हमें कुछ रूल लिखना पड़ेगा। सो सोनाली, गो टू दैट सर्च बॉक्स एंड सर्च फॉर, गो टू दैट होम टैब फर्स्ट Yes. एंड सर्च फॉर वर्कफ्लो रूल। Yes. So click on that new rule। Once you click on that new rule, then what is it? Object, right? Search for Then select, object. search for our object, that is patient। Yes. Then next.
Hmm. Now go Here it down, is rule. give the rule name, patient admit rule, patient admit rule. Now you can give any name to this rule. Yes. Description, if you wanted to write, then you can write, but it is in the जब भी आप अगर Salesforce में करियर बनाओगे तो ये डिस्क्रिप्शन हमेशा लिखना. दिस shows that you are a hardcore developer, right? बिकॉज ये अगर क्योंकि कंपनी में कोई छोड़ के चला गया तो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक रूल है, राइट? ऐसे तो आपके सिस्टम, ये जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए एक एक एग्जांपल ले रहे, बट रियल टाइम में एक एक इसके हजारों रूल्स लिखे रहेंगे, बहुत सारे रूल्स रहेंगे, राइट? सो उसमें से आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये कौन सा रूल कब फायर हो रहा है. उसमें अगर चेंजेस करने हैं तो उसमें से आपको वो रूल ढूंढ के उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, right? So it's always good to write, or it is the best practice that you have to write such a description anywhere you find in your development page, right? So after that, description के बाद क्या है नीचे? Evaluation criteria. Evaluation criteria, you can select created and or just click on created, right? क्योंकि फर्स्ट टाइम ही उसको ये किया रहेगा, या फिर क्रिएटेड एंड एडिटेड रखा तो भी चलेगा. क्रिएटेड एंड एडिटेड एवरी टाइम सिलेक्ट. Yes. क्योंकि क्या होगा, नाउ व्हाई व्हाई आई एम कीपिंग दिस, हमारे पास 3 अकाउंट हो सकते हैं, राइट? पेशेंट का अलग, डॉक्टर का अलग, और इसका अलग, कंपाउंडर जो, या फिर वो उस डिपार्टमेंट का अलग. सो रिसेप्शनिस्ट क्या करेगी? रिसेप्शनिस्ट कांट टेक एनी डिसीजन. रिसेप्शनिस्ट क्या लेगी? सिर्फ नाम, ईमेल, राइट, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी चीजें पेशेंट से पूछ के लेगी. तो एडमिट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन डॉक्टर का रहेगा, राइट? सो डॉक्टर उसको एडिट करेगा वो रिकॉर्ड को. सो क्रिएटेड एंड एडिटेड दोनों ही टाइम पे हम वो फंक्शनैलिटी देने वाले हैं, या फिर वो ये रूल फायर होना चाहिए, राइट? सो किस कंडीशन, नाउ वी हैव टू एंटर द कंडीशन, किस कंडीशन पे पेशेंट को एडमिट करना है? तो पेशेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फील्ड है, नीड टू एडमिट. जब वो यस रहेगी तभी हमें टास्क असाइन करना है, अदरवाइज हम टास्क असाइन नहीं करेंगे. सो सोनाली, सिलेक्ट दैट फील्ड in the drop down, need to admit. Yes. Select it, equal to yes, type yes. Now go down, नीचे क्या है? Action on, we have to, this is our rule, ये हमारा रूल हो रहा है, राइट? उसके नीचे क्या है, जरा स्क्रॉल डाउन करना. Yes. That's it. Save and next. ओके, हाँ, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो. Yes. Now once you reach to this page, right, you need to what is, इसके नीचे क्या है? एक्शन, एक्शन का Add. ड्रॉप डाउन Add. है. Yes. Add workflow हाँ, action. हाँ. So now click on this add workflow action. Now here in this drop down there are various options, right? But हमने already action बना के रखी है. So we don't need to create a new email alert or new task or nothing. What we have to select here, add existing option. सबसे last वाला option रहेगा उसमें drop down में. Yes. Select existing action. Select it. Now यहाँ पे Yes. you can see in that first check first this text box there is task, right? Task लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? सोनाली, क्लिक ऑन दैट सर्च टास्क, वो ड्रॉप डाउन टास्क जो लिखा है ना. हाँ, Yes. Yes. here you can see
इसमें जो एग्जिस्टिंग जो हमारे इसमें पेशेंट ऑब्जेक्ट में जो भी एक्शंस है, अभी एक्शंस कौन से थे, ईमेल अलर्ट, टास्क, फील्ड अपडेट। सो जो भी एक्शंस रहेंगे, आपको अगर टास्क का एक्शन देना है तो आप यहाँ पे टास्क सिलेक्ट करो, ईमेल अलर्ट देना है तो ईमेल अलर्ट दो, राइट। बट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टास्क। सो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी टास्क रहेंगे, राइट, you can have those tasks available under this box। बड़ा सा जो बॉक्स है, सोनाली हाइड दिस ड्रॉप डाउन, Yes. राइट। सो ये पूरा आपका इसमें पूरे जो बड़ा सा है बॉक्स है, उसके अंदर जितने भी टास्क रहेंगे वो सारे टास्क रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे एक ही टास्क है हमारा भी, अगर आपने और भी टास्क लिख के रखे तो वहां पे और भी टास्क आ सकते हैं, है ना। आप पेशेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अकाउंट को भी एक टास्क असाइन कर सकते हैं कि भाई इसका सब हो गया, इसका बिल जनरेट करो, राइट। फिर अकाउंट डिपार्टमेंट ने बिल जनरेट किया, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा कि भाई इसका पेमेंट ले लो। फिर अकाउंट डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में ले लिया, फिर वो फाइनल एग्जिट वालों मतलब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बोलेगा कि इसको छोड़ना है भाई, फिर उनके पास एक सिग्नल, इनके पास एक टास्क जाएगा कि उनको छोड़ दो, है ना। तो उसमें पेपर वर्क नहीं रहेगा, फटाफट फटाफट इधर से बटन क्लिक किया उधर दिखेगा, उधर से बटन क्लिक किया उसको दिखेगा, है ना। तो पेपर वर्क कुछ नहीं रहेगा। आजकल आप होटल में भी जाते हो तो होटल वाले भी वेटर आजकल मोबाइल लेके खड़ा होता है, मोबाइल पे ऑर्डर लेता है वो, राइट। वो इस पे पेन और पेपर से ऑर्डर नहीं लेता है अभी, है ना। तो वो भी एक तरह का सीआरएम ही है। सो सिमिलरली एवरीथिंग इज नाउ ऑटोमेटेड, सब कोई ऑटोमेटिकली उनके मोबाइल के ऊपर या फिर उनके इसके ऊपर सिग्नल जाता जाएगा। नाउ सिक्योरिटी को भी आप रिसेप्शनिस्ट के पास भी जाते हो, उनके पास भी आजकल बड़े बड़े टैब्स होते हैं। इतना इतना दूर क्यों जाते हो, इवन इन महाराष्ट्र जो भी केजी के स्कूल्स होते हैं, केजी मीन्स गवर्नमेंट रन स्कूल्स, जिनको हम आंगनवाड़ी या बालवाड़ी बोलते हैं मराठी में, उनके पास भी टैब्स है, राइट। सो इट्स नॉट अ बिग डील कि उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना है, इट्स नॉट अ बिग डील, सीआरएम से ही वो सारा होता है। और उनको चलाना एक बार सिखाना है कि कैसे, उनको थोड़ी ना ये टास्क भी जनरेट करना, ये उनका काम नहीं, ये एज ए डेवलपर आपका काम है। उनका सिर्फ क्या करना है, रिकॉर्ड फिल करना है। रिकॉर्ड फिल करते समय ही वो कंडीशन अगर मैच होती है तो वो आगे जाएगा। जैसे पेशेंट अभी ये जो हम कर रहे हैं, दैट इज योर वर्क एज ए डेवलपर, आपका काम है। एंड यूजर का काम क्या रहेगा, या फिर जो रिसेप्शनिस्ट रहेगी उसका काम क्या रहेगा, सिर्फ पेशेंट का डिटेल्स भरना। डॉक्टर का काम क्या रहेगा, इसको एडमिट करना है या नहीं करना है, वो जो फील्ड रहेगी यस और नो करना। उसने यस कर दिया तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो बेड अरेंज करने वाला डिपार्टमेंट है उनके पास टास्क चला जाएगा, राइट। फिर उसको एडमिट करना, उसका अकाउंट फाइनेंस, है ना, या फिर उसको बाहर छोड़ना, वो सारा हम अलग अलग टास्क बना सकते हैं, अलग अलग टीम को असाइन कर सकते हैं, राइट। हमारे इसमें टास्क कौन सा है, सिर्फ एक ही टास्क है, दैट इज अरेंज द बेड फॉर दैट पेशेंट, राइट। यहाँ पे वेरी ह्यूज नंबर ऑफ टास्क भी हो सकते हैं, तो उसमें से आपको आपका पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है। हमारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही है, क्योंकि हमने अभी से तो काम शुरू किया हमारे ऑर्ग में। सो सिलेक्ट दैट टास्क एंड उसको ये वाले बॉक्स में डाल दो, ये एरो क्लिक करके। नाउ दैट टास्क इज जंप इनटू द actual box। so press on save, Yes. done and activate the rule। डन के ऊपर क्लिक कर देना एंड एक्टिवेट कर देना इसको। Yes. नाउ एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। ये आपका काम हुआ। आपका काम क्या, आपने एज ए डेवलपर क्या क्या काम किया अभी तक। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके पेशेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको एडिट करके उसको अलाउ एक्टिविटीज करके एक चेक बॉक्स था उसको चालू कर दिया, तब भी जाके उसके वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम टास्क बना सकते हो। एज ए डेवलपर में आपका रोल बोल रहा हूँ। सो जैसे ही आप टास्क में जाओगे, उसमें ड्रॉप डाउन में अभी पेशेंट का नाम आएगा, राइट। वंस यू सिलेक्ट दैट पेशेंट नेम, देन यू कैन क्रिएट द टास्क, राइट। फिर आपने टास्क क्या क्रिएट करना है, किस टास्क को एक नाम देना है। टास्क का नाम हमने क्या दिया, अरेंज द बेड फॉर द पेशेंट। उसका डिस्क्रिप्शन ले सकते हो, उसका सब्जेक्ट डालना है, राइट। आफ्टर दैट वो किसको असाइन करना है वो डालना है। तो हमने
हमारे सिस्टम में और एक यूजर है, उसको डाल दिया है, मगर रियल टाइम में बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, राइट? तो उसको डाल दिया, हमने एक यूजर को उसमें डाल दिया, उसको असाइन करना है। नाउ द टास्क इज क्रिएटेड। टास्क मीन्स एक तरह का एक्शन है। हमारे पास 4 एक्शन है। 4 एक्शन कौन से है? तो email triggering or the email alert, field update, task assignment, outbound messages. Out of which we are now talking about task assignment, right? So हमने एक एक्शन बना लिया। एक एक्शन मतलब क्या करना है वो हमने डिसाइड किया। क्या करना है दैट इज फाइन, मगर कब करना है? ईमेल मुझे भेजना है, ईमेल अलर्ट बना है, ये एक एक्शन हो गया, मगर कब भेजना है? फील्ड को मुझे अपडेट करना है, राइट? वो एक एक्शन हो गया, मगर कब भेजना है? वो कब भेजना है उसका आंसर है आपका वर्कफ्लो रूल। सो उसके लिए आपको एक रूल लिखना पड़ेगा, राइट? सो सबसे पहले एक्शन क्रिएट करो, और वर्कफ्लो रूल बनाने के लिए जो स्टेप्स है वो सभी में कॉमन है। just search for workflow rule in your quick find box, right? Create the new rule, rule का कुछ नाम देना, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, राइट? आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन लिखना, एंड देन रूल का कंडीशन लिखना। अभी हमने रूल का कंडीशन क्या लिखा कि भाई हमारा नीड टू एडमिट जो फील्ड है, राइट? नीड टू एडमिट का फील्ड है, उसका वैल्यू कब क्या होना चाहिए? यस होगा तो ये टास्क असाइन करना है। अगर उसको एडमिट ही नहीं करना है, डॉक्टर ने अगर नो कर दिया, तो वो रूल फायर होना चाहिए, सॉरी एक्शन फायर होना चाहिए, क्या नहीं फायर होना चाहिए? तो ये रूल लिख दिया हमने। once you hit the save button, then rule will be created. Now rule is ready, action is ready, but we have to assign that rule or assign that action to that particular rule. So वहां पे एक ड्रॉप डाउन आता है, असाइन वर्कफ्लो एक्शन। सो उसको क्लिक करना और एग्जिस्टिंग एक्शन के ऊपर सिलेक्ट करना। हम वहां से न्यू रूल, न्यू टास्क भी बना सकते हैं, न्यू ईमेल भी बना सकते हैं, बट डोंट गो बाय दैट वे। एक्शन पहले बनाओ, फिर रूल को असाइन करो। सो क्लिक ऑन सिलेक्ट एग्जिस्टिंग एक्शन, और वो ड्रॉप डाउन जो आएगा एक्शन का, उसमें टास्क रहेगा, ईमेल अलर्ट रहेगा, आउटबाउंड मैसेज रहेगा, फील्ड अपडेट रहेगा। सिलेक्ट ऑन टास्क। वंस यू सिलेक्ट ऑन टास्क, आपने जितने भी आपके सिस्टम में टास्क रहेंगे वो उस मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट में आ जाएंगे। सो जो हमारे केस में एक ही टास्क था, सो सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर टास्क एंड एंटर इनटू द सिलेक्टेड वैल्यूज, राइट? क्लिक ऑन सेव। वंस यू क्लिक ऑन सेव, देन डन के ऊपर क्लिक करना है एंड रूल को एक्टिवेट कर देना है। दैट्स ऑल। अवर we are now ready, or we are good to go to assign the task. Now jump to your application, Sonali, in your original app, in your original account, not in the yesterday newly created account. Go to app and create one patient, right? In that patient need to admit का जो field है, वहां पे आपने yes select करना है। Sonali, can you hear us? Yes. Go to the application. Yes. Right. Create one. This is your original account, right? Yes. Not secondary. Okay. Yes. This is our Then original. click on new patient and create one patient with the name, whatever name you can have, and with yes, need to admit जो field है उसको yes select करना है।
Yes. Save that patient. Yes. Now here on the left hand side, this is your original account, right? Yes. Under task, could you see something? Yes. Highlight it. Read it. What is written? Kumbade has an upcoming task. That is हाँ, our new user. यस, ओके। तो यहाँ पे भी दिखेगा ये डॉक्टर ने ये दिस इज कंसिडर दिस इज डॉक्टर अकाउंट और डॉक्टर ने यस कर दिया तो डॉक्टर को भी दिखेगा कि ये टास्क किसको गया है, ये उस जो हमने नाम डाला था उसको गया है, राइट। नाउ सेकेंड अकाउंट में जाओ, अभी आप आपके सेकेंड अकाउंट में जाओ जो हमने कल बनाया था। Yes. यस, सो हियर रिफ्रेश दिस अकाउंट वंस। Yes. Have you refreshed? Yes. So now here you can see आपका जो बेल आइकॉन है जहां से आप लॉग इन लॉग आउट का होता है ना, वहां पे सोनाली टेक योर माउस ऑन दैट बेल आइकॉन Yes. सेटिंग, हाँ राइट। in that here you can see that on that bell icon there is one small red symbol is there and written one. That means this is the one task that is assigned to this user. So click on that this bell icon. Now Yes. here you can see the task is assigned to the patient and what is the yes, right. So ये किसने असाइन किया है उसको, तो ये फर्स्ट वाला यूजर था, राइट। ये फर्स्ट यूजर था ओमकार कुंबाड़े, ये फर्स्ट वाला यूजर था हमारा। असाइन टास्क टू यू, राइट। ये उसने टास्क दिया है कि क्या टास्क है उसने, अरेंज द बेड फॉर द पेशेंट। तो Patient. वो इसके ऊपर क्लिक करो, हाँ, क्लिक ऑन दिस फर्स्ट टास्क, Yes. राइट। नाउ दिस इज द ये टास्क उसको असाइन हुआ है, राइट। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे है उसके सामने। उसको क्या करना है, जो जो भी हमने भरे थे, राइट, डिटेल्स टास्क के रिलेटेड वो सारे यहाँ पे आएंगे, राइट। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्टेटस दिखेगा, स्टेटस में नॉट स्टार्टेड है, फिर वो क्या कर देगा, जैसे उसको स्टेटस दिखेगा और वो काम शुरू कर देगा, स्टेटस को क्या कर देगा स्टार्टेड, या जब कंप्लीट कर देगा कंप्लीटेड। तो डॉक्टर को भी वहां पे दिखता जाएगा कि इसने ये क्या कर रहा है, right. In this way we can do this kind of a automation of task assignment। एक से दूसरे को हम, एक डिपार्टमेंट से हो, एक यूजर से हो, कैसे हम टास्क असाइन कर सकते हो और पूरा ट्रैक रख सकते हैं, राइट। सो इससे ये कुंबाड़े करके जो न्यू यूजर है उसको जितने भी टास्क असाइन होंगे वो उसको दिखते जाएंगे, उसके ही टास्क दिखेंगे, दूसरे यूजर को असाइन किए हुए टास्क इसको नहीं दिखेंगे, right. So in this way we can create the task, keep the track of the task. That is what the automation is all about, right. This is not a pen and paper। ये कहीं पे भी डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं है, कहीं पे भी ये होने के चांसेस नहीं है ना। आपको और एक बताता हूं, जैसे ये टास्क जो है, राइट, अभी जब आप सेल्स और मार्केटिंग में काम करोगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पहले पूछा था सेल्स फोर्स में सेल्समैन का जॉब है क्या। सो नो, नॉट एट ऑल। इट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अ वेरी पावरफुल टूल टू कीप द ट्रैक ऑफ योर ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कस्टमर और वन प्लेटफॉर्म। वेरी पावरफुल टूल है ये, राइट। सो जब जब कोई भी बैंक का ये होता है, राइट, इंश्योरेंस, यू माइट हैव नोन दैट इंश्योरेंस कंपनी जो होते हैं, आपको भी दिन में 10 कॉल आते होंगे कि हमारा इंश्योरेंस लो, हमसे लोन लो, ये लो वो लो, राइट। क्यों? क्योंकि उनको टारगेट होता है कि आपको साल में या फिर मंथ में इतने लाख का इंश्योरेंस आपने लेके ही आना है, तभी आपकी सैलरी निकलेगी, वॉट एवर इट में भी। ये उनके ऊपर टारगेट होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, राइट। इतना आपने सेल करना है, राइट। सो क्या होता है, अगर रिसेप्शनिस्ट पे जो भी बंदा है, राइट, वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, एक रिसेप्शन पे
कस्टमर आया वॉक इन और बोला कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, और वो रिसेप्शनिस्ट को तो कोई प्रेशर नहीं है, उसका शी इज नॉट टारगेट ओरिएंटेड, तो वो क्या कर सकती है, किसी दूसरे जो उसके पहचान का बंदा है उसको वो कस्टमर को दे सकती, जा भाई तू इसके पास जा, वो आपका इंश्योरेंस निकाल के देगा। तो एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, वो रिसेप्शनिस्ट के पास जितने भी वॉकिंग कस्टमर आए वो कहाँ पे गए, एक ही बंदे के पास गए, और कंपनी में एक ही बंदे का परफॉर्मेंस एकदम अच्छा, और बाकी बंदे अपनी मेहनत से जो ला रहे वो ला रहे, इसको रेडीमेड कस्टमर्स मिल रहे। सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। सो यहाँ पे भी हम ऑटोमेशन ला सकते हैं कि भाई सबको बेच देंगे, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट देंगे, राइट, कि हेल्थ इंश्योरेंस वाला रहेगा तो वो एक बंदे के पास जाएगा, राइट, आपका अगर लाइफ इंश्योरेंस रहेगा तो दूसरे के पास रहेगा, कार इंश्योरेंस रहेगा तो तीसरे यूजर के पास जाएगा, टर्म इंश्योरेंस रहेगा तो तीसरे के चौथे के पास जाएगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो पांचवे के पास जाएगा, ऐसे वो अलग अलग यूजर दे सकती है, मतलब हम डिजाइन करके देंगे। तो रिसेप्शनिस्ट के पास जो भी बंदा आएगा तो वो सिलेक्ट करेगी म्यूचुअल फंड, उसको किसी को देना नहीं, म्यूचुअल वो डेटा एंटर करेगी म्यूचुअल फंड, ऑटोमेटिकली वो सारे डिटेल्स वो म्यूचुअल फंड हैंडल करने वाले बंदे के पास या डिपार्टमेंट के पास जाएगा, मतलब उसमें रिसेप्शनिस्ट का गफला करने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, right? So this is how also you can have the automations in your system. So do you have any doubts in this? So in this way we have completed various things in the workflow, right? That is task assignment, field update and email alert. Okay. So from tomorrow onwards we will start with reports and dashboard topic, राइट। अभी अभी हमने रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अलग अलग हॉस्पिटल के ब्रांचेस है ना, अकोडी, तलेगांव, हिंजवाड़ी या वॉट एवर, कासरवाड़ी, ये अलग अलग ब्रांचेस है। सो हम इनका परफॉर्मेंस देखेंगे, उनके चार्ट्स निकालेंगे, राइट, उनके पाई चार्ट्स निकालेंगे या उनके बार चार्ट्स निकालेंगे, उनका मीटर निकालेंगे, गाड़ी का जैसे मीटर होता है ना, कितना बिजनेस किया वो निकालेंगे, और उसको हम एक अलग से पेज में डाल देंगे, राइट। तो जो भी मैनेजमेंट के बंदे हैं उनको हर एक ऑब्जेक्ट में जाके देखने की जरूरत नहीं, उनको एक ही वन पेज में ही सारा दिखेगा कि भाई आज का सेल कितना हुआ, या आज कितने पेशेंट आए थे, ये या फिर ये मंथ का कितना है, राइट, या फिर ये साल में कितना कमाया, ये हॉस्पिटल ने कितना कमाया, क्योंकि अलग अलग 4 ब्रांचेस में रन हो रहा है हमारा, तो सबसे अच्छा कौन सा हॉस्पिटल कर रहा है, सबसे बुरा कौन सा हॉस्पिटल कर रहा है, तो अच्छा कर रहा है उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बुरा कर रहा है तो उसके क्यों बुरा कर रहा है, उसके रीजंस फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैनेजमेंट के लोग, और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसका परफॉर्मेंस, राइट। ये सारा ये आएगा रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स में, राइट। सो इस तरह से वी विल स्टार्ट ऑन reports and dashboard topic from tomorrow onwards. Okay, so if you are having any doubt then we will discuss here, or otherwise we can leave for the day. Sonal, you can stop the recording. Yes, sir.